else. Yes or no? So that we can take it up towards the end of the webinar, aapke problems, so that quickly write down your problems along with your name and number. So now let's come back to the Ashtang Chikitsa. I can see Manjit ma'am with a notebook and a pen. Ma'am, not required. You're not required to have a pen and a notebook. आप सिर्फ ये वेबिनार को सुनिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए how your body works. That's all we want. Once you understand how this body works, its peculiarities, and and how it can help you come out of your current health problems, that is the key. कि सब कुछ आपके इंटरनल हेल्थ से रिलेटेड है. आप बाहर से जो भी करेंगे उससे आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा. So how many of us have joined this webinar because we have not found any relief out of any pathy that we have been doing? Whether it's allopathy or it's Ayurveda or it's homeopathy, किसी चीज से हमें relief nahi mila hai except the temporary ones. Yes or no? Give me a quick thumbs up. Yes, Neha ma'am, there you are. And a couple of more hands going up. तो क्या कर सकते हैं हम सुबह उठ के popping a pill? Nobody enjoys it, right? Oh, the morning stiffness. Oh, the pains and aches, the inflammation. Movements में तकलीफ हो रही है. Menopause के बाद especially women face these issues. So what happens? Let's know more about Ashtang Chikitsa. So do I have the permission to share the screen? Thank you so much, Rashi ma'am. Sneha ma'am, thank you so much. Just give me 2 minutes. Is the screen visible? Yes or no? Give me a thumbs up. Okay, so Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. So now let's see further what are we going to know about neuromuscular health issues. So namaskar, a warm welcome from Rachna Bothra, and I'm your host today for the webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. So what exactly are we going to know in today's webinar? We will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found relief despite spending a good amount of money on various treatments. So Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method so that your internal organs are functioning at their optimum levels. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people across the globe who have not found any relief even after years of using different kinds of medicines. So he has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer, which I think most of you all will agree that अभी तक हमारे पास एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है. So at Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So what do we mean when we say the structure of the human body? The musculoskeletal system is one of them.
how the structure of the human body can function in its best possible way. That's our purpose at Avisa Healing and Fitness. So it's a profound way of addressing the aspects of a human body. So who is this webinar for? ये webinar आखिर है किसके लिए? People who are tired of popping a pill and are getting temporary treatments, but are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. So reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtanga Chikitsa, freedom from pain and medicine. So let's see what Swamiji has to talk about the Ashta Sharir or the 8 softwares in our body. तो क्या है वो अष्ट शरीर? सृष्टि शरीर, गर्भ शरीर, गोश शरीर, मर्म शरीर, प्रमाण शरीर, संख्य शरीर, prakriti sharir, vikriti sharir. So when we are talking about the neuromuscular health issues, what exactly are we talking about? The prakriti and the vikriti sharir. Yani ki the regenerative factor of the body, which is prakriti, and the degenerative factor, which is the vikriti sharir. तो होता क्या है जब imbalances होती है बॉडी में, यानी कि degeneration is faster than the regeneration. What is the outcome? The pains, aches, inflammation, stiffness. So Ashtanga Chikitsa can heal the commonly noted problems among the past participants and the new age people: knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issues, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. Ashtanga Chikitsa can also heal some of the rare kind of diseases, or I would say some of the chronic health issues like muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome, spinal stenosis, myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylosis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, AVN, Alzheimer's disease or dementia, glaucoma, vertigo, ankylosing spondylitis. So let's hear from Swami Rajvibhuji what exactly he has to say about neuromuscular health issues and how you can come out of it. Thank you so much for listening to me patiently. I will just quickly tell you how we are going to proceed in the webinar. So what are we going to listen now to? The recorded video of Swamiji. After that, we will have somebody live who's been a current participant of Ashtanga Chikitsa, so that you can understand with his or her journey how it is in Ashtanga Chikitsa online therapeutic class and how you can benefit from it. Of course, then we share the program details. Last but not the least, Swami Rajvibhuji himself will be coming live to answer your questions in the webinar. So quickly लिख डालिए आपके problems along with your name and number. Thank you so much for listening to me patiently. Namaste. Over to Anil ji to share the program details. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है,
they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक example से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन who has somehow damaged one knee, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी. लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो. And he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों हो जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द का रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a
breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtanga चिकित्सा. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtanga Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always sharira. Both body and mind complex is called as sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take an example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं. आप लेना नहीं चाहते हो. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more.
If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. Oof. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. सो ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold. It is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है? तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya.
The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा है ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. What are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें. जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go. Let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath.
अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी. इसी को धातु भी कहते हैं. वी कॉल इट धातु. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इजंट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. लाइक बोन इज वेरी मच डेंस. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड. सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन. हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. व्हाट इज डायबिटीज? योर पैनक्रियाज इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. व्हाट इज हाइपोथायराइड? योर थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, है ना? इट हैज आल्सो रिलेशन विथ लिवर. व्हाट इज किडनी डिजीज? योर किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. ऑर्गन डैमेज आजकल ज्यादा है. यू विल सी मोर क्रॉनिक डिजीज आर देयर, है ना? ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज. सो हाउ डू यू करेक्ट योर ऑर्गन? सपोज देयर इज अ जॉइंट पेन ड्यू टू लिवर डिसफंक्शन. लिवर के कारण आपके शरीर में जॉइंट पेन है, इन्फ्लेमेशन. सो यू विल हैव टू करेक्ट द लिवर. आपको लिवर ठीक करना पड़ेगा. इज देयर अ मेडिसिन टू करेक्ट लिवर? नो, देयर इज नो मेडिसिन टू रिजुवेनेट योर ऑर्गन. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुवेनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ, वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, तो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यू कांट लिफ्ट वेट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows
ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. दिस इज व्हाट हाउ वेट ट्रेनिंग एंड बॉडी बिल्डिंग हैपेंस, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? अब सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज, आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर, यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. सो बाय ब्रेथ होल्ड यू कैन क्रिएट एन इंटरनल ट्रिगर. कैन यू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स योर हार्ट, टुवर्ड्स योर लिवर, टुवर्ड्स योर किडनी, टुवर्ड्स योर थायराइड, टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए, हाउ यू मेड वन हैंड मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर. एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? बिकॉज यू वर्क विद दैट हैंड मोर, इजंट इट? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. एंड हाउ डिड यू वर्क? ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन, ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन, दैट हैंड बिकेम स्ट्रॉन्ग. सो इफ यू डू ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन इनसाइड, दैट ऑर्गन विल बिकम स्ट्रॉन्ग. दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे. So how you can rejuvenate your liver, how you can make your liver strong, how you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए, and there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also, छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, लंग्स, ऑर्गन्स एंड द एक्सटर्नल बॉडी इज कनेक्टेड. ये सब जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो जंक्शन पॉइंट है, दिस जंक्शन पॉइंट ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज मर्मा. इफ दिस जंक्शन पॉइंट इज ओके, लुब्रिकेटेड एंड फ्लेक्सिबल, यू कैन परफॉर्म बेटर. अगर ये जंक्शन पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक मूवमेंट ठीक से होगा. योर ऑर्गन फंक्शन विल हैपन प्रॉपर्ली. सो दीज आर कॉल्ड मर्मर्स. सो मर्मा नीड्स अ कांस्टेंट रिजुवेनेशन. इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन, वी नीड टू एक्चुअली make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का मूवमेंट का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे खटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना मूवमेंट के नहीं होगा. ब्लड सर्कुलेशन कैन हैपन विदाउट मूवमेंट बिकॉज देयर इज अ पंपिंग ऑर्गन.
एक हार्ट है जो ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है, लिम्फ का कोई सर्कुलेशन नहीं करवा रहा. इट विल ओनली हैपन बाय मूवमेंट ऑफ द बॉडी. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, न्यू सेलुलर फॉर्म, बेटर सेलुलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेलुलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म, अष्टांग चिकित्सा में देयर इज अ पार्ट इन अष्टांग चिकित्सा, देयर इज अ पार्ट कॉल्ड एज अंगन्यास एंड मर्म विन्यास, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. तो function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी: material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these word called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. सो व्हाट इज योर जॉइंट प्रॉब्लम? व्हाट इज इट कॉल्ड एज? वात दोष. राइट? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वात? मूवमेंट. वात ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? यू कंट्रोल योर मूवमेंट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ यू कैन नॉट कंट्रोल योर मूवमेंट. तो वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things.
So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing Kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now been busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics.
When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप मूव करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए, आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा feel होगा? How will you feel in your body and mind? You will feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called Udana. In Kumbhak Kalachar, in Kumbhak Vigyana, we call it Udana. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root Udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose in Prana Shakti diagnosis. यही Prana Shakti diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do Prana Shakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक module सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps
And then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is, so it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex, Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई ये मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. I would now like to request Shagun ma'am to please share her journey of Ashtang Chikitsa. Shagun Gupta ma'am, am I audible? Yes, ma'am. So Hello, if you ma'am. could share your journey. Yes, ma'am, you can go ahead. मैम मुझे लास्ट ईयर स्कॉलियोसिस की प्रॉब्लम हुई थी जिसमें मुझे L4 L5 बोन में प्रॉब्लम थी और साथ में S1 नर्व जो में मेरी हमेशा दबी रहती थी. पूरा मेरे पैर में पेन जाता था नीचे तक. और मैंने लास्ट 6 वीक्स में सिर्फ ये किया है कुंभक थेरेपी, तो उससे मेरा वो पेन एकदम गायब हो गया है. बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है काफी और नेबल एरिया मेरा बहुत सॉफ्ट हो गया है पहले के मुकाबले. और मैम कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम तो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है. बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा हो गया है. ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो गया है. तो ये सारे बेनिफिट्स मैम मुझे इस टाइम देखने को मिले. और स्किन डिजीज में जैसे मेरे को बहुत ज्यादा ड्राई स्किन रहती थी मेरी बहुत ज्यादा पहले, तो वो स्किन डिजीज पहले से कम हुई है काफी. तो मैम दीज आर द बेनिफिट्स. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ी है. जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो बेड पे बैठ के मैं ढंग से मतलब क्रॉस लेग्स भी करके नहीं बैठ पाती थी. और नाउ आई कैन सिट ऑन योगा मैट एंड डू कंफर्टेबली ऑल क्रियाज. तो थैंक यू सो मच अबीसा एंड स्वामी जी. Thank you so much, Shagun ma'am, for sharing your journey of Ashtang Chikitsa to our participants. Now I would like to request Rohini ma'am to please share her journey. Rohini Panajkar ma'am. Yes, ma'am. I'll just put you on spotlight. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yeah, good evening, and it's nice of you to give me an opportunity to share my journey. I'll introduce myself first. I'm a professor in engineering college.
And I wish to share the experiences that I had during when I had practiced and when I had joined your Ashtanga Yoga. Prior to this, until 2000, my energy levels were very good. My health also was reasonably good. But then in 2020, in the Delta variant, I was infected with COVID and I was seriously infected with it. So I had hypoxia. It was a COVID-induced pneumonia, which led to severe hypoxia. My lung capacity was completely lost. And that led to a lot of problems, related problems. It took me almost 1.5 years of long COVID to come slightly out of it. And in addition to that, I had a number of falls, and therefore I had multiple fractures in both my knees as well as in my legs, and they were weak. When I had joined Ashtanga Yoga, even prior to that, I was doing yoga, though I was not doing Ashtanga Yoga. It was yoga and pranayam that helped me, to come out of COVID. But I was still at a very low energy level, and I knew that I had a long way to go. And it so happened that I came across an advertisement for Ashtanga Yoga. I think it was on Facebook. And I decided to join Avisa's 9-week journey. Since then, I have been doing Ashtanga Yoga and Kumbhak practice very regularly. The moment I get up in the morning, that is the first thing that I do. And that is followed by roughly around 10 to 10.5 kilometers of walk in the entire day. I'm able to do this now, whereas I never had any stamina post-COVID earlier. I think my energy levels are more sustained, and my sense of balance and ability to stand on one leg, this has become better. I think that inner balance has improved. And as I had mentioned earlier, I had multiple fractures in both my legs and knees, and due to this, I was unable to fold my knees and sit down. I could not do Vajrasan. I could do Balasana with a lot of difficulty, and I was in pain. Even while walking, I used to have a lot of pain. I'm now able to sit down straight for at least a minute. And it hurts inside the knee, but I'm able to do that. So I'm doing both Vajrasan and Balasana for at least a minute. I'm keeping my improvements slightly slow. The idea is that I try to stretch each day a little bit further as compared to what it was earlier. I mentioned earlier that my lung capacity was completely lost. My pulse rate also always used to be high post-COVID. But since I was doing pranayam and yoga, I was slowly limping back to normal. I think my lung capacity has improved due to Ashtanga Yoga and Kumbhak. When I started, my exhalation was very fast. When I tried to make it slow, there was a burning feeling in my chest. But slowly, with subsequent practice, I'm able to breathe out slowly. The burning has also reduced. Post-COVID, my sleep was disturbed. I also had, because of the steroids that were given to me, I had developed diabetes. Now, this has disturbed my productivity, both at the workplace and even at home. But now I find that I'm sleeping far better as compared to what it was earlier. I'm able to sleep at least for 4 days in a week, or sometimes 5 days in a week for about 7 hours. I get up only once, rarely in the night. Though my sugar levels have not really improved, but my food pain, the fog in my mind, heaviness and confusion in my brain, all of that has reduced. And I think functionally, I'm at a far, far better place than what I was earlier. I'll be continuing with this, I think, for lifelong, because I know that this is improving my internal stamina and it is improving my strength. And I thank the Avisa Parivar for giving me this opportunity to share my experiences, or also for enabling this kind of an improvement in me. Thank you very much. Thank you so much, Rohini ma'am, for sharing your journey of Ashtanga Chikitsa. Now, I would like to request Anilji to please share the program details to the participants. Over to Anilji to share the program details. Yes. Give me a few seconds. Let me share my screen. Rachna ji, are you able to see my screen? Yes. Okay. So let's get to know the details of the program, which a lot of you may be waiting for. जल्दी से हम जान लेते हैं पूरे program details, classes कैसे होंगी, timing क्या होगा,
क्योंकि काफी लोग इंतजार कर रहे हैं प्रोग्राम डिटेल्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ गाइडेड प्रोग्राम विच इज कंडक्टेड ऑनलाइन बाय ट्रेन्ड कुंभक मेंटर्स। ये एक गाइडेड प्रोग्राम है जो एक्सपर्ट्स की सुपरविजन के अंडर कराया जाता है। हमारे ट्रेन्ड कुंभक मेंटर्स हैं जो स्वामी जी द्वारा ट्रेंड हैं। ये जूम एप्लीकेशन के ऊपर लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती है। दैट्स द फर्स्ट थिंग, इट्स कंडक्टेड थ्रू जूम लाइव सेशन। There are 3 modules in the program, as Swamiji explained in the video also. इस प्रोग्राम के 3 मॉड्यूल्स हैं, वात, पित्त एंड कफ मॉड्यूल। Duration of each module is 21 days or 3 weeks. So total program duration is 3 into 3, 9 weeks. Now, if you see here, it's 9 plus 1 weeks. 9 जमा 1, 10 हफ्तों का प्रोग्राम है। एक एक्स्ट्रा वीक क्यों जुड़ गया है? Why this 1 week extra? We'll get to understand shortly. There'll be 2 live classes, out of which one will be a 2 live classes every week. One learning or the main class and one mentoring or the practice class. What is the difference? We'll come to know. What are the next steps? The first step is to pay the program fee. अब पहला जो step है इसमें ये आप program fee pay करते हैं. And we have a special webinar pricing for people who have stayed back. After that, you fill the participant onboarding form so that we can create login credentials for course access. ये course access क्या है? ये हम जानेंगे थोड़ी देर में. And then you start your classes starting with module 1 or the Vahat module, then module 2 and module 3. All modules have to be completed. तीनों modules को पूरा किया जाता है जिससे पूरा प्रोग्राम बनता है. Module 1, again 6 classes, 3 learning and 3 mentoring classes. Same for module 2 and module 3. So total classes 18 plus 1 customization class. What is this customization class? ये customization class क्या है? ये भी हम जानेंगे थोड़ी ही देर में. Engagement becomes 10 weeks. Total program की जो engagement रहेगी आपके साथ वो 10 हफ्ते की रहेगी. Batch 129 is starting on 8 May, which is a Monday at 7 p.m. Module 1, ये mentor classes हैं या practice classes हैं. For module 1, mentor classes will be on Thursdays. For module 2, mentor classes or practice classes will be on Fridays. For module 3, the mentor classes will be on Saturdays. We'll share all the details in the WhatsApp group as well as in chat here. So you need not worry and need not remember. What is the class experience like? ये कैसी classes होती हैं? As you must have come to know by now that these are live sessions conducted on Zoom app. All the participants, जो mentors हैं, वो सभी participants को देखते हैं, इसीलिए आपको कैमरा ऑन रखना जरूरी होता है. Then you get written instructions in English and Hindi. लिखित निर्देश होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल कराए जाते हैं. And then you get session recordings. सभी classes की recording available कराई जाती है through the course dashboard. Then there are a lot of extra things that are given during the program, like mental practices, unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan. ये diet plan नहीं होता है. There are no dietary restrictions. काफी लोग पूछते हैं कि इसमें हमें डाइट का कुछ बताया जाएगा क्या? एक डाइट का पर्सपेक्टिव मिलता है. आपको एक वीडियो मिलेगा स्वामी जी द्वारा जिसमें बताया जाएगा कि खाने को कैसे इस्तेमाल करना है ताकि वो आपके शरीर को नुकसान ना करे, सपोर्ट करे. बिकॉज डाइट प्लान्स काम नहीं करते हैं ड्यू टू द रीजन बिकॉज वन टाइप ऑफ फूड is okay for some people and the same food is not okay for other people. So you cannot have one diet plan for all. It's a diet perspective which Swamiji gives through a video. Then you get simple detox processes and a lot of knowledge is shared during the course of these 9 weeks. Now, before I announce the fee, I'll just like to talk about the yearly expenses that you could already be doing just to maintain the disease that you are into. And mind you, this is just maintenance of the disease, not treatment for most of the people. ये मैं कुछ numbers यहाँ पर लिखे हैं, कुछ मैंने figures लिखे हैं, कुछ statistics है यहाँ पे जो मैं शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा एक पर्सपेक्टिव मिले, एक कंपैरिजन मिले कि जब जो प्रोग्राम फी होगी जो मैं अनाउंस करने वाला हूँ थोड़ी देर में कि आप एग्जैक्टली क्या ले रहे हैं. बिकॉज दिस इज ह्यूमन
tendency to compare things, to compare whatever, be it a product or a service or a therapy. If you see this, you may be paying 6,000 to 12,000 every year to the doctors in the form of a doctor's fee. If you're into physiotherapy, another 12,000 to 30,000 could be going towards that, and medicines could be costing another 15,000 to 30,000. So if you total all of these, 33,000 to 72,000 per year, you could already be spending. 33,000 से 72,000 का शायद आप पूरे साल भर में खर्चा कर रहे होंगे. जब हम टोटल करते हैं तब ये बहुत बड़ी फिगर बन जाती है, बट नॉर्मली हम कैलकुलेशन लगता है कि सब कुछ नॉर्मली है और मैनेज हो रहा है. And then if you are into allopathy, we know the side effects, so we will not talk about that here so much. तो सिर्फ ये मैंने इसलिए शेयर किया ताकि हम समझ सके कि क्या ऑलरेडी एक खर्चा कर रहे हैं towards maintenance or the management of your disease. And it's also important to talk about a few things so that it becomes clear who this program is for. And it's important to know who this program is not for. ये जानना भी जरूरी है किन लोगों के लिए शायद ये प्रोग्राम नहीं है. This program is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. स्वामी जी इसकी काफी बात करते हैं मैजिक पिल की, क्योंकि ऐसी दवाई कोई बन नहीं सकती है कि उससे आप ठीक हो जाए. शरीर ही खुद को ठीक करता है. और अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो शायद ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, बिकॉज जो भी आप प्रॉब्लम में है वो ओवरनाइट नहीं आई थी, रातों रात नहीं आई थी, तो रातों रात जाएगी भी नहीं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. आर नॉट रेडी टू वर्क इन देयर बॉडी, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने शरीर पर, अपने अंदरूनी शक्ति पर काम करने को तैयार नहीं है. क्योंकि डेली 80 से 90 मिनट का टाइम आपको अपने ऊपर लगाना होगा. यू हैव टू इन्वेस्ट अबाउट 80 to 90 minutes every day on yourself. So if you do not have this kind of a time, that this program may not be for you. And this is not for those who are impatient. We understand that when you are into pain, when you are into any kind of disease, the patience goes down, but still we wanted to make it clear. And this program is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. I'd like to stop here and talk about a bit more on this point. यहाँ पर मैं थोड़ा रुककर थोड़ा बात करना चाहूंगा, बिकॉज काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों में. बिकॉज जो आपने एड देखी होगी फेसबुक पे, उसमें कहा गया है कि फ्री इंट्रोडक्टरी वेबिनार अबाउट अष्टांग चिकित्सा. काफी लोग सोचते हैं कि थेरेपी फ्री है, और जब हम फीस अनाउंस करते हैं तब तो वो कहते हैं कि आपने कहा था ये फ्री है. तो वेबिनार दैट यू आर अटेंडिंग इज फ्री, दैट ट्रीटमेंट ऑफ 9 weeks is less. So just wanted to make it clear so that later on you do not ask in the group or you do not, shout at us. And this is not for people who are looking for some tips. काफी लोग होते हैं वेबिनार में, काफी अटेंड करते हैं वो वेबिनार अलग अलग एक्सपर्ट्स के, कि कुछ टिप मिल जाए यहाँ से, इस वेबिनार से मिल जाए. बट एवरी एक्सपर्ट हैज अ वे ऑफ ट्रीटमेंट. सो अगर आप टिप्स ढूंढेंगे तो शायद ये काम ना करे, बिकॉज कोई भी ट्रीटमेंट आपको एक पॉइंट से स्टार्ट करनी होती है टिल द एंड. और वो टिप्स पर नॉर्मली ट्रीटमेंट्स नहीं होते हैं, बिकॉज अगर टिप्स के बेसिस पर ट्रीटमेंट होने होते या वो इफेक्टिव होते तो यूट्यूब में हजारों टिप्स के वीडियोस हैं, हजारों एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उससे ठीक तो नहीं हुआ जा सकता. तो थोड़ा इसलिए ये जानना जरूरी था कि ये पॉइंट क्लियर हो जाए सभी के लिए, ताकि बाद में आप मुझसे लड़ाई ना करें. ओके, नाउ व्हाट ऑल यू गेट इन द प्रोग्राम. प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन. This alone could be worth the total fee of the program. Why? Because not many treatments are there which can find out the root cause, or if they know how to find the root cause. I'd like to stop here and talk about it in detail, what exactly it is. First, this is a non-medical diagnosis and this is an online diagnosis. Now, both things may sound, very strange to you, because we have been used to visiting doctors, taking X-rays, MRIs, all sorts of things. But if you see closely, any kind of MRI, any kind of X-ray, any kind of report that you get,
दे आर जस्ट ऑब्जर्वेशन। वो सिर्फ ये बताती हैं, लेट्स से आपने अपनी स्पाइन का किया, यहाँ पर गैप हो गया है, टेढ़ा हो गया है स्पाइन, दीज आर ऑब्जर्वेशन। वो सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसा दिखाई दे रहा है, बट क्यों ऐसे हुआ वो नहीं बता पाते, तो ये डायग्नोसिस नहीं हुआ। इट्स लाइक सेइंग, इट्स शोइंग सम कलर्स टू अ child and asking what color it is, blue color, red color, green color. That's an observation. But why that thing has that color, the child is not able to tell. So same is with the reports. In the name of diagnosis, those are just observations. So what is this Pran Shakti diagnosis? Let me explain. You'll get a form, a link of a form, and in which you'll be asked to do some experiments on your breath and emotions. And you have to note those down, record those in the form. आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा और आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को बोला जाएगा अपनी सांस के ऊपर, ब्रेथ के ऊपर और अपने इमोशंस के ऊपर, और वो रिकॉर्ड करना होगा उस फॉर्म के अंदर। सेकंड थिंग दैट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी राइटिंग अबाउट योर प्रॉब्लम इन ग्रेट डिटेल। आपको दूसरी जो चीज करनी होगी इस फॉर्म में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में लिखना होगा। एंड द थर्ड थिंग दैट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी अपलोडिंग अ सेल्फी फोटोग्राफ, shoulder and above, in which the face should be clearly visible, but there has to be no specs on the eyes, and in case of ladies, no makeup also. तीसरी जो चीज इसमें करनी होती है, आपको सेल्फी फोटो अपलोड करनी होती है, लेकिन आपके चेहरे पर, आपकी आंखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए, और लेडीज के केस में कोई मेकअप भी नहीं। When these three things reach Swamiji, he is able to determine which force out of the 84 forces. If you remember in the video, Swamiji talks about the 84 forces through which the body works and the functioning of the organs happens. So which out of those 84 forces has become weak, due to which you landed in your current health problem, that he is able to determine through this Pran Shakti diagnosis. Okay. Second point, weekly there'll be one main class of 60 to 90 minutes. Why 60 to 90? Because 60 is the actual duration of the class, and after the class we take up questions. क्लास एक्चुअली 60 मिनट की होती है, उसके बाद सभी के सवाल लिए जाते हैं, उनके डाउट्स क्लियर की जाती है क्लास के दौरान ही, तो उसमें 30 मिनट के आसपास का टाइम लग सकता है। सो दैट्स व्हाई 60 टू 90 मिनट्स। प्रैक्टिस क्लास में भी सेम है, सेम इज ट्रू फॉर प्रैक्टिस क्लास आल्सो, 60 to 90 minutes. Then online course access for 6 months. What is this online course access? Like I told you, the classes are recorded. जैसा कि मैंने बताया, सभी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है और कोर्स डैशबोर्ड में अपलोड कर दी जाती है, और जिसका एक्सेस आपको 6 महीने तक रहेगा। This access to all the recordings will remain with you for 6 months after the 10 weeks of your program is over. So that is enough time to learn all the kriyas by heart. Next, videos of all kriyas done in the class. How this is different from the last point? How this is different from the class recording? The class recording is of the whole duration of the class, 60 to 90 minutes. But these videos are separate videos of all kriyas. Some kriya may take you 2 minutes, some may take 10 minutes, some may take 20 minutes. So the videos of kriyas are also given in your course dashboard. आपके जो कोर्स डैशबोर्ड होगा उसके अंदर अलग अलग क्रिया का अलग अलग वीडियो भी मिलता है। आप रिटन इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश एंड हिंदी, लिखित निर्देश मिलते हैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, और डेली अपनी क्रिया करते वक्त रेफर कर सकते हैं रिटन इंस्ट्रक्शंस को। चाहे आप वीडियो से देखें और सीखें, या रिटन इंस्ट्रक्शंस, लिखित जो निर्देश है उससे देखें और सीखें, up to you. Private WhatsApp group to ask doubts and questions 6 days a week. This is very important. This is where you get daily support. जैसा कि मैंने बताया, 2 क्लासेस होंगी आपकी हर हफ्ते. There will be 2 classes, live classes every week. The remaining 5 days, when you're practicing on your own, and if you have any doubt that time, this is the place where you'll be asking your doubts and asking your questions. ये वो जगह है, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप वो जगह है जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, अपने क्वेश्चन सवाल पूछेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेंटर्स हैं, इसी ग्रुप में ऐड होते हैं, और वो आपको आपकी डाउट का समाधान करते हैं, वो आपके सवाल का जवाब देते हैं, और आपको गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से। देन इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग एंड फीडबैक। आपकी जो 9 वीक्स की जर्नी है, आप उसको ट्रैक किया जाता है, आपको एक फॉर्म मिलता है, वीकली ट्रैक किया जाता है, जिससे पता लगता है कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है।
Then therapy customization for each participant in the 10th week. This is very important. ये बहुत जरूरी point है. If you remember, the first point I talked about Pran Shakti diagnosis to find the root cause. Now, based on that diagnosis, the therapy or the kriyas are customized and fine-tuned in the 10th week. आपका जो डायग्नोसिस है जो पहले हफ्ते में किया जाता है लेकिन इस्तेमाल होगा 10वें हफ्ते में, और आपकी जो थेरेपी है, आपकी जो क्रियाएं हैं, उनको फाइन ट्यून किया जाएगा इस डायग्नोसिस के आधार पर. अब एक सवाल उठता है, व्हाई इन द 10th वीक? इफ द डायग्नोसिस इज डन इन द फर्स्ट वीक, व्हाई नॉट कस्टमाइज द क्रियाज इन द 10th वीक, इन द फर्स्ट वीक ओनली? उसका एक कारण है, there's a reason behind it. In these 9 weeks, 3 main things happen. 3 main चीज होती हैं इन 9 हफ्ते के अंदर. First, you are taught controlled exhalation, which is the basis of this therapy. आपको कंट्रोल्ड एक्सहेलेशन सिखाया जाता है, और इसी वजह से अगर आप कपालभाति करते हैं डेली बेसिस पर तो वो आपको 5-6 महीने के लिए मना किया जाता है, बिकॉज कपालभाति इन्वॉल्व्स forced exhalation, and what we are trying to teach here is controlled exhalation. दूसरा, तो 9 हफ्ते के अंदर दूसरा जो मेन काम किया जाता है, 3 बेसिक अलाइनमेंट्स है जिसके बारे में स्वामी जी ने डिटेल में बात की है वीडियो के अंदर. इनर थाइज, नेवल एंड द चेस्ट. सो इनकी अलाइनमेंट की जाती है इन 9 हफ्ते के दौरान. ओके. और तीसरी जो मेन की चीज की जाती है इस इन 9 हफ्ते में, आपको वात, पित्त और कफ बैलेंस किया जाता है. द वात, पित्त एंड कफ ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड. नाउ द बॉडी इज रेडी टू रिसीव दीज कस्टमाइज्ड क्रियाज इन द 10th. I'll try to explain in a simple terms. Just like before sowing seeds in the field, you plow the field, you put fertilizer or manure in the field. जैसे आप खेत में बीज बोने से पहले खेत को तैयार करते हैं, उसी तरीके से शरीर को तैयार किया जाता है ये कस्टमाइज्ड क्रियाएं रिसीव करने के लिए, आपकी थेरेपी को फाइन ट्यून करने के लिए. राइट. 10th and the last point is extended support for 30 days after the program is over. Why 30 days extra is given? Because many a times, a lot of people, they miss their classes due to various reasons. Some of the reasons being that either they're traveling or some people fall very sick, so that they are not able to attend classes. Whatever the reason is, you still get 30 days after the program is over. You can still clarify your doubts. If you're attending daily, your weekly 2 classes, and if you are asking doubts in the WhatsApp group, which I talked about, then there won't be any doubts because you're doing it on a daily basis. But if you missed any classes, then you may find a need to ask questions. So that's why these 30 days are there. So you need not worry at all if you miss any classes during the program. All these points are listed here, as I talked about. Now the program fee for Ashtanga Chikitsa, the fee part is the most interesting part which most of the people wait for. कि देखते हैं price क्या है, क्या fees होगी. Okay, but this is the normal fee that we charge, but like I promised you that there's a special webinar pricing. मैंने webinar pricing बताया था कि special pricing है. Let's know what that is. Just 6,500 for the complete 9 weeks program, all 18 classes plus 1 customization class, therapy customization, diagnosis, support in the WhatsApp group, 30 days of extra support, class recordings for 6 months, all inclusive. It's been made so affordable that most of the people can take advantage of this amazing, unique therapy, Ashtanga Chikitsa. How to enroll? First step is to pay the program fee. Then you post your payment receipt in the WhatsApp group that you're a part of, the webinar group where you got the links. And then you fill the participant onboarding form. Step 4 is to join the class WhatsApp group through the link that Neha from our team will be sending you on your personal chat. And then step 5 is to start attending classes and you start learning Ashtanga Chikitsa. A simple 5-step process. Payment details we'll share in the chat right now and in the WhatsApp group also. I'd like to just stop here for some time and talk about the super team that will be at your service. Why super team? We don't call ourselves a super team. Our participants call us. The kind of support they get and the kind of hand holding we do. So they've given us this title. We have Rachna Shimal Bothra. She's the program director and she is the webinar host also.
Then we have Shalini Bhagwat. She's the class manager. She takes care of all the batches. If there's any need to change the batch and all, she's the person who does that. Then Ashwini Kumar, he is the MIT manager. We have mentors who will be taking your classes. Ranjana Swain, R.D. Gupta ji, Soni Chhabria, Aruna, Neena, Suruchi, Arundhati, Meera, Sushma. We have enough mentors to take care of all the participants because we understand this is an online program. So things are a bit different when you are learning online. So we have taken care of that by having enough mentors so that nobody is left out. हमारे इतने mentors क्यों हैं ताकि हम हर एक participant के ऊपर टाइम लगा पाए, उनको अटेंड कर पाए, उनको देख पाए, उनको सपोर्ट कर पाए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन सीखते हैं तो थोड़ी चीजें अलग होती हैं ऑफलाइन के मुकाबले. So we've taken care of all parts of the online learning and online therapy. Then Neha Upadhyay, she is the enrollment teacher. She is the person who you will be talking to the most before you start your classes about the payment details, sending the receipts and all. So she'll be the person who will be sending you all the class links, class join links, and then she'll be enrolling. Anil Chauhan, that's me. I'm the WhatsApp admin. I'll be answering a lot of your questions in the WhatsApp group that you are a part of, because due to shortage of time, we may not be able to take up. So please do not worry about it. अगर आपका सवाल अभी वेबिनार के दौरान नहीं लिया जाता है, प्लीज उसकी चिंता ना करें. Please don't feel bad about it. Please don't leave the group. Many a times somebody's question was not taken, but they left the group. That, oh, my question has not been taken, I'm leaving. Please don't do that, because otherwise you'll lose an opportunity to ask a question and to take advantage of this. Because the more you ask, more you'll understand. If you leave without asking any question, and then you may not understand about this amazing therapy. And then we have Himanshu Reddy. He's the technical person who takes care of all the video uploads, the app installations. He'll be creating login ID and passwords for you. If your video is not working, he'll be the person who will be helping you out. And then we have Anita ji. She's a personal support executive. She calls each and every participant. Every day she's calling 20, 30 people to ask how the program is going on, if you're facing any problem or not, so that she can, if something is not going right, she can take a corrective action, and so that you can attend your program, the complete therapy, without any problem. And with this, I come to the end of my part, and I hand over the webinar back to Rachna. Namaskar. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. Now I will be taking up the questions. So let me see if Swamiji has joined it. Yes, he's joined. Yes. I'm putting him on spotlight. Namaste, Swamiji. So we'll just take up the questions one by one. Give me 2 minutes as I read the questions. Okay. Vindhyachal ma'am talks about frozen shoulder problem. Now, frozen shoulder. Do you know why it happens? Frozen shoulder क्यों होता है? And why it is called frozen? हाँ, जम गया ऐसा क्यों कहते हैं? अच्छा, frozen को अगर आपको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? What will you have to do? Supply little heat. थोड़ा गर्म करो, है ना. एक रीजन बता रहा हूं, आप इसको मैं 2-3 तरीके से समझाऊंगा. Please try to understand. Unless and until you understand the fundamentals of why something is happening, there is no solution. क्या फ्रोजन शोल्डर का कोई सोल्यूशन है एलोपैथी में? नहीं है. तो ऑपरेट करेंगे, एक फ्रोजन ऑपरेट करेंगे, दूसरा फ्रीज हो जाएगा. So operation is just support, not a solution. अच्छा, गर्मी सप्लाई करेंगे, हीट करेंगे. You can also do some experiment upon yourself and see how you can actually take care of that or how you can come out of that. अगर थोड़ा अपने साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे ना,
तो भी आपको पता चल जाएगा। थोड़ा हीट सप्लाई करना है ना। ऐसे लोगों का जिनका फ्रोजन शोल्डर होता है ना, या जॉइंट फ्रोजन होते हैं, you'll see their digestion is not proper. उनके शरीर में डाइजेशन का इशू हमेशा ही रहता है। देर इज ऑलवेज एन ऊर्ध्वगत वायु, यानी कि फूड जो है एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो पाता। आयुर्वेद में इसको कफ वात दोष कहते हैं। अच्छा, यू ऑल्सो नो, आप ये भी जानते हैं कि फ्रोजन कोई चीज है, जैसे जैसे गर्मी वहां पे पड़ती है या मूवमेंट होता है, वो आपको आराम मिल जाता है। सो यू कैन डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंट। थोड़ी थोड़ी ना सांस को रोकें, जितना आप रोक सकते हैं, 10 मिनट तक रोकें, और फिर देखें कि वो फ्रोजन शोल्डर जहां पे है उसकी क्या हालत है। सो आई हैव डन इट विद लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग हैं जिनके साथ में ये सब काम किया गया है। एंड ऑल्सो यू कैन सी कि इस, जैसे कि somebody who is doing हठ योगा, है ना, तो ऐसे उन्हें खड़े होके नाक को घुटने से लगाना है। ट्राई करके देखिए कहां तक पहुंचते हैं। डू सम कुंभक फॉर 10 मिनट्स सिटिंग एंड ट्राई टू रीच आउट टू योर नी, यूल सी, ओ हम तो क्लोज पहुंच गए। व्हाट हैपेंस आफ्टर डूइंग कुंभक? फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी जनरेट्स अ लिटिल हीट। उस हीट से आपके जॉइंट सपल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। द सेकेंड एस्पेक्ट इज, जैसे ही आप कुंभक करते हैं, योर मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस, यानी आपके शरीर में जो फूड का डाइजेशन ना, जठराग्नि बढ़ती है, फूड का डाइजेशन अच्छा हो जाता है, तो आपके बॉडी में रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन होने की वजह से जॉइंट्स में अगर टॉक्सिन है तो वो निकलेंगे, और वहां पे अगर डीजनरेशन है तो वो दोबारा बनेगा। ठीक है, तो कुंभक करने से मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, जॉइंट पे असर आएगा। तीसरी चीज क्या होती है? देयर आर पीपल, उनको देखने में आएगा कि वन शोल्डर इज फ्रोजन, द अदर शोल्डर इज फाइन। एक घुटने में प्रॉब्लम है, दूसरे में नहीं है। कमर के एक तरफ में ज्यादा पेन है, दूसरी तरफ में नहीं है ना। सिमिलरली इन द हैंड्स और लेग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी का अलाइनमेंट ठीक नहीं है। ठीक है ना, अलाइनमेंट ठीक नहीं है। मेनी अ टाइम्स स्मॉल प्रॉब्लम्स बिकम फाइन जस्ट बाय अलाइनिंग योरसेल्फ। केवल अलाइनमेंट कर देंगे ना तो भी ठीक हो जाएगा। अब देखिए, आप अपनी गाड़ी को उबड़ खाबड़ जगह में लेके जाते हैं, व्हील अलाइनमेंट करते हो, पर अपने को कैसे इस्तेमाल करते हैं? अपना तो कोई अलाइनमेंट करते ही नहीं। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, और एटलीस्ट वंस इन अ मंथ यू शुड बी अलाइनिंग योरसेल्फ। तो हम आपको तरीका बताएंगे। 3 तरीके की अलाइनमेंट आपके शरीर को चाहिए होती है, नाभि, कौड़ी, नले। ये 3 अलाइनमेंट, नाभि का अलाइनमेंट नहीं होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, डाइजेशन ठीक नहीं होगा, पेट की समस्या रहेगी। कौड़ी का अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा तो लंग्स का इश्यू आएगा, हमेशा सांसों के साथ में इश्यू आएगा आपका। एलर्जी, अस्थमा जैसी चीजें आपको होंगी, और या फिर ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नलों का इश्यू रहेगा तो हमेशा घुटनों की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, इम्बैलेंसेस, ये सब चीजें होंगी। तो ये तीनों अलाइनमेंट हमारे प्रोग्राम में है ही, हम सिखाते हैं। तो एक तरीका क्या बताया मैंने कि आपके शरीर में हीट जनरेट करने की कैपेसिटी कम है, तो दवाई करके हीट जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं बढ़ती। ठीक है, वो कैसे बढ़ेगा? कुंभक करके बढ़ेगा। दूसरा, मेटाबॉलिज्म वीक है। मेटाबॉलिज्म कैसे स्ट्रांग होता है? कोई दवाई खा के स्ट्रांग नहीं होता, तो कुंभक करने से मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। तीसरी चीज मैंने बताया, अगर आपके जॉइंट्स में टॉक्सिन्स हैं और डीजनरेशन है तो वो भी कुंभक के जरिए, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनल प्रेशर जैसे ही अप्लाई करते हैं तो चीजें मूव करना शुरू कर देती हैं, आपका डिटॉक्स भी अच्छा होगा, और जो मेटाबॉलिज्म में आपके बॉडी ने जितने टिश्यूज बनाने हैं वो भी सही जगह पे न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाएंगे। और फिर 5वीं चीज क्या बताया आपको? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आप ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन बता रहा हूं मैं, दवाई खा के ये ठीक नहीं होता। आप जरा इस भ्रम से निकलें कि आपके शरीर में, आपके शरीर की शक्तियां दवाई खा के बढ़ जाती हैं, क्योंकि दवाई खा के या फिर अच्छा भोजन करके एक बार मैराथन दौड़ने की कोशिश कीजिए, क्या दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। वो तो तभी दौड़ पाएंगे जब आपके शरीर की शक्तियों को, रिकवरी को, स्ट्रेंथ को आप बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ganga Bhatt ma'am talks about knee inflammation and pain. इन्फ्लेमेशन जब भी हम कहते हैं ना,
इन्फ्लेमेशन, नी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? ज्वलनशीलता, है ना, जलन हो रही है। इन्फ्लेमेशन के ऊपर ही आपको मैं काफी चीजें अभी बता दूंगा, जो जो यहां पे हैं उनको ये जानना कम से कम बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे इन्फ्लेमेशन सबसे बड़ा कारण है किसी भी डिजीज और डिफिकल्टी का। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं सारी चीजें जोड़ दूंगा और आपको समझ में भी आएगा। इन्फ्लेमेशन इस वक्त में सबसे बड़ा कारण है किसी भी बीमारी का और किसी भी प्रॉब्लम का। अच्छा, कहां से शुरुआत करें? तो मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल देके शुरुआत करते हैं, ठीक है? नाखून से अपने स्किन को खरोच लें तो जलने लग जाएगा ना, इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। पहले समझ जाइए इन्फ्लेमेशन क्या होता है। कोई केमिकल अपने स्किन पे रगड़ लें तो क्या होगा? जलन होगा ना, तो इन्फ्लेमेशन होता है। कोई भी तीखी जहरीली चीज आपके स्किन पे लगते ही इन्फ्लेमेशन होता है। तो वो जलन जो होता है ना, वो इन्फ्लेमेशन होता है। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या होता है? जरा मैं यहीं से शुरुआत कर दूं ताकि आगे जाके आपको पता चल जाए। थोड़ा सा वहां पे घी लगा लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो इन्फ्लेमेशन, वो जलन जो है वो कम हो गया। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कैसे हो रहा है। पहले ये देखते हैं, क्या आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, और इसी से बाकी सभी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्यों हो रहा है ये समझने की जरूरत है। तो एक बात आप समझ जाइए, आपका शरीर डिजाइन किसके लिए, आपके बॉडी का रिस्पॉन्स कैसे कैसे होता है। आपका बॉडी जिंदा है ना, हार्ट बीट तो नहीं करवा रहे आप, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, न्यूरो फंक्शन कुछ भी नहीं करवा रहे, सब कुछ अपने आप करता है। तो ये बहुत समझदार बुद्धिमान शरीर है। अच्छा, इसको भोजन देंगे ना, तो ये इसके लिए कुछ रिस्पॉन्ड करेगा, हां, प्रतिक्रिया करेगा। क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट के लिए इंसुलिन निकालता है, मेटाबॉलिज्म और बनाना है, प्रोटीन के लिए थायरोक्सिन निकालता है। ठीक है ना? तो आप नेचुरल भोजन देंगे तो इसके एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब निकलेंगे। अगर नेचुरल चीज नहीं डाली आपने तो क्या हो गया? ये हमेशा खतरा देखेगा। तो कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म घुस गया, कोई ऐसी चीज आ गई आपके शरीर के अंदर जो आपका भोजन नहीं है, तो इसका इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाएगा। मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स चालू नहीं होगा, क्या चालू होगा? खतरे का रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि कौन से पेड़ पे आपने दवाइयां लगे हुए देखा है? किसी पेड़ पे देखा दवाइयां, इंजेक्शन लगे हुए, लटके हुए पैदा हो रहे हैं? नहीं। तो आपका शरीर तो डिजाइन नहीं हुआ ना उसके लिए। तो कोई भी दवाई आपके शरीर के लिए अच्छा है या खतरा है, ये बताइए मुझे। खतरा है ना आपके शरीर के लिए, कोई भी मेडिसिन आपके शरीर के लिए खतरा है। तो जब भी मेडिसिन डालेंगे तो आपके शरीर का कौन सा रिस्पॉन्स आएगा? इम्यून रिस्पॉन्स आएगा ना, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स तो नहीं आएगा, इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, बार बार दवाई डालेंगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, ये दोनों ही बिगड़ जाएंगे। तो एक छोटे 2 किलो का बच्चा होता है ना, अप्रोक्सीमेटली जब पैदा होता है, कितनी पर्ची बनाई जाती है ना, 24 वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन करने उसको। वहां से आपने उस शरीर को खराब करना शुरू किया, उसके शरीर में ऐसी चीजें डाली जिसके लिए उसका शरीर डिजाइन ही नहीं था। अब क्या हो गया? समय के साथ में पूरी ह्यूमैनिटी का मेटाबॉलिक रिस्पांस खराब हो गया। याद कीजिए, आपके दादा परदादा और उससे एक जनरेशन पहले क्या उनको डायबिटीज, थायराइड ऐसी चीजें थी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसी कोई चीज थी? नहीं थी। 100 साल पहले किसी को डायबिटीज नहीं थी, किसी को ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नहीं होता था। थायराइड तो 25 साल की बात है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने दवाई शरीर को में डालना शुरू कर दी। तो सबको डायबिटीज हो रही है, सबको प्रॉब्लम। अब मेटाबॉलिक रिस्पांस खराब हो गया तो आपके शरीर में कोई चीज बनेगी ही नहीं ठीक से। तो घुटने घिस रहे हैं लोगों के, कमर में इश्यू आ रहा है, नर्व डीजनरेट हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, हाँ, न्यूरोपैथी हो रहा है, सबको हो रहा है ना। तो ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? बताइए, कितना सिंपल है ना समझना। तो मेटाबॉलिक रिस्पांस और इम्यून रिस्पांस खराब होता है। अब थोड़ा सा और आगे जाके समझा रहा हूं। जब आप अंदर शरीर में कुछ भी डालते हैं तो आपके शरीर में एक गेट कीपर है जो चेक करता है सबको, जिसको मालूम है दूसरा ब्रेन है वो आपके शरीर का, वो है आपका लिवर। लिवर में आपकी ये दवाइयां और भोजन को भी हमने खराब कर दिया ना, हाइब्रिड
जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोसेस, वो भी ऐसा ही है जैसा आपका शरीर नहीं पहचानता, है ना। तो आपने भोजन भी खराब कर दिया, दवाई डालना शुरू कर दिया, तो लिवर बेचारा बाहर निकाल रहा है चीजों को, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, निकाल दो। 500 मिलीग्राम की दवाई खाते हो, पैरासिटामोल खाते हो, 498 शरीर निकाल देता। 2 मिलीग्राम ओवरलोड है जो आपके शरीर में घुस जाता है, ओवरलोड करके घुसाते हैं, तो यहां से टॉर्चर करना शुरू करते हैं। मगर ये देखिए, आपका लिवर जरूरत से ज्यादा टॉक्सिन्स, केमिकल्स, जहरीली चीजों को झेल रहा है ना, तो बेचारा थोड़ा इन्फ्लेमेशन में आएगा, उसको जलन होगी कि नहीं होगी, थक जाएगा। अब बताइए, इंसुलिन कहां गिरता है आपका? लिवर में ही तो गिरता है इंसुलिन। अब वो बेचारा काम नहीं करेगा, कहेगा कि नहीं नहीं मुझे काम नहीं करना। आप थक जाते हैं तो नहीं करते। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज। कितने लोगों को हो रहा है टाइप 2 डायबिटीज? लिवर को खराब करेंगे तो डायबिटीज नहीं होगा क्या? क्योंकि वो इंसुलिन इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा ठीक से। उसके बाद अब लिवर काम ठीक से नहीं करेगा। अब सपोज कीजिए एक पॉटरी करते हो आप, है ना, कोई छोटे छोटे ब्यूटीफुल कप बना रहे हैं, आप थके हुए हैं, आपका कंट्रोल नहीं है हाथों पे, तो वो कप अच्छे बनेंगे खराब बनेंगे? खराब बनेंगे ना। तो आपका लीवर क्या बना रहा है? आपका शरीर ठीक से ग्लूकोज नहीं बना, गंदा ग्लूकोज बना रहा है, गंदा प्रोटीन बना रहा है। वो आपके ब्लड में दिखाई देता क्योंकि वो शरीर इस्तेमाल नहीं करता। तो वो प्यास लगा के फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके उसको निकाल देता है, क्योंकि शरीर जानता है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, निकाल दे। आप क्या करते हैं? शुगर बढ़ गया ब्लड में, मेटफॉर्मिन खाओ, ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लाइकोलाइड खा के उस शुगर को अपने किडनी में घुसा देते हैं, लिवर में घुसा देते हैं, ऑर्गन में घुसा देते हैं। भाई देखिए, आपके शरीर तो शुगर को बाहर निकाल देता, मगर आप दवाई खा के वो शुगर को निकालते कहां है? अपने किडनी में घुसा देते हैं, अपने हार्ट में घुसा देते हैं, तो ऑर्गन डैमेज होता है। ठीक है। अब बेचारा लिवर थोड़ा सा अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा फैट लगाएगा ना। आपने तो घी लगाया कि नहीं लगाया? शुरुआत में ही बता दिया था। तो फैट लगाएगा थोड़ा, तो आप क्या बोलेंगे? फैटी लिवर हो गया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। और इतना रिस्क आप डालते हैं, वो रिस्क से अपने आप को बचाने के लिए वो कॉर्टिसोल पैदा करना चाहता है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन। क्या है? कॉर्टिसोल। तो उसको कैसे पैदा करेगा? ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल से, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है उसके लिए, वो बढ़ाएगा। तो आप क्या कहोगे? गलत कर दिया, गलत कर दिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया मेरा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया मेरा। आप शरीर को बचाने ही नहीं दे रहे। जब कोरोना को मारने के लिए फीवर करेगा तो आप डोलो पैरासिटामोल खा के फीवर कम कर दोगे। जब उल्टी करेगा तो उल्टी बंद कर दोगे। जब दस्त करेगा तो दस्त बंद कर दोगे। जब दर्द करके बताएगा कि ये प्रॉब्लम आ गई, दर्द को ही काट दोगे, रेड लाइट को ही तोड़ दोगे। हमें नहीं मानना जी। अगर आप टॉर्चर को ही ट्रीटमेंट बताने लग गए तो सारी मानवता बिगड़ जाएगी। अगर शरीर को टॉर्चर करने को आप ट्रीटमेंट बोलने लग गए, तब कौन बचा सकता है बताइए? तो सभी को प्रॉब्लम आ रही है। 2 साल का बच्चा इंसुलिन लेना शुरू कर रहा है। ADHD, हाँ, 10 में से 6 बच्चों को ADHD है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एपिडेमिक की तरफ फैल रहा है। जैसे ही टीनेज में बच्चियां जा रही हैं, उनको थायराइड का इश्यू आ रहा है। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है दुनिया में। इतना ही ज्ञानी हो गए तो कोई भी डिजीज कम क्यों नहीं कर रहे? घुटने की प्रॉब्लम सभी को हो रही है कि नहीं? न्यूरो इश्यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो आपको देखना पड़ेगा। अब ये शरीर में अगर लिवर खराब होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा ही होगा, तो वो जॉइंट पे जाएगा इन्फ्लेमेशन, आपके टॉक्सिन्स बनेंगे, वो टॉक्सिन जॉइंट पे जमा होंगे, इनको मर्म स्थान कहते हैं। वहां पे दर्द होगा, या तो सूजन होगी या डीजेनरेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। तो आपको ठीक क्या करना है? घुटने बदलवाने, ठीक हो जाएगा उससे मेटाबॉलिज्म आपका। दूसरा घुटना बदलवाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा सूट नहीं किया, फिर क्या करोगे? पहले चल पाते थे, चल भी नहीं पाएंगे। किडनी खराब हुई, क्या करना? किडनी बदलवा लो। बड़े बड़े लोग किडनी बदलवाए और रास्ता नाप लिया अपना। लिवर खराब हुआ, लिवर बदलवा लो, ट्रांसप्लांट कर लो। हार्ट खराब हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट। और ठीक क्या करते हैं ये तो बताइए। अगर ट्रांसप्लांट ही करते हैं तो ठीक क्या करते हैं? आप दर्द की दवाइयां खा खा के, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कहते हैं उनको, आप खा खा के आपने क्या किया? आज यंग लेडीज
कंसीव नहीं कर पा रही, बच्चा नहीं पैदा कर पा रही, कंसीव नहीं कर पा रहे। मालूम है क्यों? प्रोस्टाग्लैंडिन कंसीव करने में हेल्प करता है। आप प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर खाते हो, जब आप दर्द की दवाई खाते हो, क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। पीरियड्स खराब हो रहे हैं फीमेल के, प्रोस्टाग्लैंडिन उसको बना के रखता है। डिलीवरी नहीं हो रही, 6 डिलीवरी 10 में से 6 डिलीवरी, मैं तो कम ही बता रहा हूं, सी सेक्शन से होता है, सिजेरियन कराना पड़ता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन डिलीवरी में हेल्प करता है। तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर खाते जा रहे हो, बॉडी को टॉर्चर करने को आप ट्रीटमेंट बोलने लग जाएंगे तो दुनिया बीमार हो जाएगी, और वही हो रहा है ना। प्रॉब्लम यह कि आपने सबसे मूर्ख प्रजाति जो मानव के इतिहास में पैदा हुई, फिरंगी, वेस्टर्नर्स, उनको अपना आका बॉस बना दिया। तो वापस से कह रहा हूं, इन्फ्लेमेशन जो है ना, वो कहां से शुरुआत हो रही है, क्यों हो रही है, ये अगर आप नहीं जानते और उसको ठीक नहीं करते, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए एक ही उपाय है, कुंभक करना पड़ेगा साहब। तो कुंभक तरीका आकाश तत्व या सिस्टेमिक प्रेशर कहते हैं इसको। आप अपने बॉडी का टॉलरेंस भी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कुंभक करना पड़ेगा, उससे आपकी प्रॉब्लम कम दिखाई देगी। अभी आपका शरीर झेल नहीं पा रहा, झेलने लायक उसे हम बहुत जल्दी बना सकते हैं। पहली बात तो उससे प्रॉब्लम कम हो जाएगी। दूसरी बात, ऑर्गन रिजुवनेशन, रीजनरेशन, ये फैक्टर आपके शरीर के बढ़ाएंगे। तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम बट लॉट ऑफ थिंग्स विल रिकवर इन योर बॉडी। आपके शरीर में काफी चीजें रिकवर हो सकती हैं। कुंभक ही वो तरीका जिससे आप वात पित्त कफ को कंट्रोल करते हो। आयुर्वेद में सबसे पावरफुल तरीका कुंभक, जो कि खो गया। 92% ऑफ आयुर्वेद लुप्त हो चुका है, हम उसको रिवाइव करने के प्रोसेस में। कुंभक वो तरीका है जिससे आप सबसे पावरफुल तरीके से अपने वात पित्त कफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इस दृष्टि से भी देखें तो कुंभक इस समय सबके लिए जरूरी है, अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है तो। एक बात समझ जाइए, देखिए, आप एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं क्या? बर्बाद कर दिया हमने तो उसको बदलने में 200 साल लग जाए। जो भोजन आपको अवेलेबल है, क्या उसको एकदम से बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। केमिकल्स आपके भोजन में आ रहे हैं ना, दूध में एंटीबायोटिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, हार्मोन्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लेकिन सबसे पहली चीज क्या कर सकते हैं इन सबसे बचने के लिए? दवाई से भी नहीं बच सकते, सरकारें आपके ऊपर लागू कर देगी, जबरदस्ती करवा देगी कि नहीं ये वैक्सीनेशन करवाना ही है। तो इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप झेलने लायक बन जाए। अच्छा, झेलते कैसे हैं? कभी वेट उठा के देखा? 10 किलो का वेट उठा सकते हैं, 20 किलो उठा के देखिए क्या करते हैं। झेलते कैसे हैं उसको? सांस रोक के, सांस रोक के। तो आप झेलना, आपकी सहन शक्ति या टॉलरेंस कम हो गया है, तो इसका मतलब क्या कम हो गया है? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम हो गई है, कुंभक क्षमता कम हो गई है। सबसे पहले जरूरी तो ये चीज है। आपका टॉलरेंस बढ़ जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम तो बहुत हद तक 60 to 70% वहीं सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद में इट विल टेक अ लिटिल टाइम व्हेन योर होल ऑर्गन्स विल रीजनरेट, रिजुवनेट। आपके फैक्टर्स, फोर्सेस एंड फैक्टर, मेटाबॉलिक फैक्टर जैसे हो गया, इम्यून फैक्टर हो गया, वो बढ़ेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you'll see your whole life will change. Next question. Okay, Dr. Harprasad Mishra talks about pain, waist and knee joint. So pain in the waist and knee joint. हाँ, तो वो तो मैंने बता दिया, वेस्ट का पेन जो हो रहा है। सी, एक और चीज मैं बता रहा हूं, चलो मैं ऐसे 1000 तरीके से समझा दूंगा, मगर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सारा गूगल दिमाग में भरने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कितना भी ज्ञानी बन जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? जब आप काम करेंगे शरीर पे, और वो भी सही काम करेंगे तब। हाँ, तो इतने ज्ञानी हो गए, बीमारी तो कोई कम नहीं हो रही। तो गड़बड़ ज्ञान है। अच्छा, मैं आपको और तरीके से बताऊं। आप गोल गोल चपटे पत्थर होते हैं ना, वो लेके आइए 33 पत्थर, और उसमें बीच में सुराख कर दीजिए, छेद कर दीजिए, और उसमें एक रस्सी डाल दीजिए। रस्सी को खींचेंगे ना, सारे पत्थर लाइन में आ जाएंगे, 33 पत्थर लाइन में आ जाएंगे। यही है आपकी रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट किस पे काम आता है? ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो स्ट्रेच है, इसकी शक्ति, जो स्ट्रेंथ है ना रीढ़ की हड्डी को अलाइन रखने की, इसे व्यान शक्ति कहते हैं। तो अगर आपका डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है, स्लिप डिस्क हो रहा है, तो आप ऑपरेट करा के ये शक्ति वापस तो नहीं लेके आते,
तो एक जगह डिस्क हिला, दूसरी जगह हिल जाएगा, आप ऑपरेट करा लो, फिर दूसरी जगह कराना, तीसरी जगह कराना। तो आप तो इलाज कर ही नहीं रहे, आप थोड़ा मैनेजमेंट कर रहे हो। जब मुश्किल आ गई तो थोड़ा ऑपरेट करवा दिया, तो उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, कम तो होगी नहीं, क्योंकि आप इलाज कर ही नहीं रहे। तो क्या इलाज क्या होगा? ये जो आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ मेंटेन करने की जो ताकत है, इसे व्यान शक्ति कहते हैं। ये बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये बढ़ाने के लिए ना तो दवाई काम आएगी, ना तो भोजन काम आएगा, ना तो कुछ और काम आएगा। ये तो अपने ऊपर काम कुंभक करके बढ़ेगा। अच्छा, ऐसी स्थिति में आप एक्सरसाइज भी नहीं करते। एक्सरसाइज लेट काम करता है, थोड़ा लंबे समय में काम करता है। ज्यादा लोड देंगे ऑर्गन पे तो ऑर्गन फेल हो जाता है, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो पहले हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ा लो, फिर जितना मर्जी एक्सरसाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुंभक करना पड़ेगा। वैसे ही व्यान शक्ति अगर आप बढ़ाना है तो हम अपने प्रोग्राम में सिखाते हैं व्यान क्रिया कुंभक, व्यान क्रिया कुंभक। तो व्यान क्रिया जैसे ही बढ़ाएंगे आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे क्या कुंभक करने वाले सबसे पहली चीज क्या कहते हैं? अरे पहले तो हम बहुत लेजी फील करते थे, लेस एनर्जी, काम नहीं कर पाते, अब हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। हुआ क्या? आपकी अपने शरीर को संभालने की जो शक्ति है, व्यान शक्ति, वो हमने बढ़ा दी। अब ये व्यान का मतलब क्या होता है और ये कैसे बढ़ाते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? मगर कितना समझ में आएगा मुझे मैं ये नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इस तरफ में हमने काम ही नहीं किया। तो व्यान शक्ति कैलकुलेट करने के लिए या ये जानने के लिए कि मेरा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कितना है, आप क्या करें? 5 सेकंड के लिए सांस भरें, उसके 4 गुना ज्यादा। अगर 5 से ज्यादा करते हैं तो मैं बता रहा हूं, 5 को 1 यूनिट मान लीजिए, 4 गुना ज्यादा यानी 20 सेकंड की सांस रोक लें। उसके बाद क्या करें? 10 सेकंड का सांस छोड़ना। अगर उसमें आपको तकलीफ नहीं होती तब आपकी व्यान शक्ति ठीक है। अगर तकलीफ होती है तो आपकी वैसे ही प्रॉब्लम में आने वाले हैं, अभी जो नहीं भी है वो भी प्रॉब्लम आने वाली है अभी। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पे जितने लोग हैं उनमें से एक की भी व्यान शक्ति ठीक नहीं है, ठीक है? अब बढ़ाना है, बढ़ाना तो है, तो मैंने तो फॉर्मूला भी आपको बता दिया, और ऐसे हजारों फॉर्मूले हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि अगर कोई एक पक्ष भी ठीक है, जैसे लिवर ठीक कर दें हम आपका, तो क्या शरीर ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसे काम नहीं करता शरीर। आपका लिवर किडनी के साथ काम करता है, किडनी हार्ट के साथ काम करता है, हार्ट लंग्स के साथ में काम करते हैं, सब एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच भी चाहिए होता है। तो एक फैक्टर ही ठीक करने से काम नहीं चलता, एक फैक्टर साथ में बाकी सारे फैक्टर सबको इकट्ठे लाना पड़ता है। इसीलिए एक गाइडेड मॉड्यूल है। इसकी जरूरत क्यों? क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच लाना पड़ता है। तो हम आपको डायग्नोस करते हैं, वो फैक्टर पता करते हैं जो वीक है और कस्टमाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, मगर आपके मॉड्यूल में होलिस्टिकली सब कुछ इंक्लूड होता है। यही कमाल है मॉड्यूल का। तो व्यान शक्ति जैसे ही आप बढ़ा देंगे तो पता चलेगा कि रीढ़ की हड्डी जो है उसको सीधा रखने की कैपेसिटी आपके शरीर की बढ़ जाती है, और वहां पे जो नर्व पिंचिंग हो रहा है ना, कहीं पे नस दब रही है, जिसकी वजह से कमर में इशू आ रहा है, जिसकी वजह से किसी एक तरफ में हाथों में या पांव में इशू आ रहा है, तो वो निकल जाएगा। साथ में अगर हम अलाइनमेंट डाल दें, तो अलाइनमेंट और व्यान शक्ति बढ़ा दें, तो आप देखेंगे सडनली आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, और काफी सारी चीजें, काफी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो है तो सही थोड़ा सा ऐसा कि थोड़ा समय लगता है समझने में, मगर आप समझ सकते हैं। मगर केवल ये भी मत समझिए कि जितना मैं बता रहा हूं उतना ही काफी है। मैं यहां हफ्तों बैठ के आपको बोल सकता हूं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे काम हुआ ही नहीं इस दुनिया में, वो काम करने की जरूरत है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? आपको आराम मिल जाए, आप ठीक हो जाए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ये सबसे पहली जरूरत है। तो वो शरीर पे काम करके ही हो पाएगा। ज्ञान आप लेते जाइए, बाद में भी ले लेंगे तो चलेगा, नहीं भी लेंगे तो चलेगा, आप स्वस्थ हो जाए, और ज्ञान नहीं भी हो तो और भी लाइफ अच्छी हो जाएगी आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Rajesh Kumar sir talks about varicose veins. वेरिकोस वेन, दोबारा से उस बात पे आते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको, आप जैसा पढ़ाई कर लिया आपने,
है ना। ज्यादा पढ़े लिखे लोग थोड़े समझदार कम होते हैं, है ना। पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, कहता है 25 साल जिसने पढ़ाई की वो 70% उसका इंटेलिजेंस गोल हो जाता है, खत्म हो जाता है और आता भी नहीं है वापस। मगर क्या करें, अब आप पढ़े लिखे लोगों की ही बात मानते हैं, तो इसीलिए सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो थोड़ा आपने जैसी पढ़ाई की है उसी तरीके से समझाता हूं। आर्टरीज वो चीज होती हैं जो हार्ट से ब्लड को आपके बॉडी में ले जाता है, और आपके शरीर से जो खून है, गंदा खून, वो वेन्स के जरिए वापस हार्ट में आता है। अच्छा, कितने लोग यहां पे ज्ञानी लोग हैं जो जानते हैं कि हार्ट ब्लड को पंप करता है? कितने ज्ञानी लोग हैं जो जानते हैं कि हार्ट ब्लड को पंप करता है? सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, हाथ उठाने में शर्म आती है। मगर मैं आपको बताऊं, हार्ट ब्लड को पंप करता ही नहीं। हार्ट ब्लड को पंप करता ही नहीं। तो आपकी पढ़ाई ना किसी काम की नहीं रही, इसका मतलब ये मॉडर्न साइंस का रिसर्च है, कटिंग एज मॉडर्न साइंस का रिसर्च है। हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता। और ये 10,000 साल से भी पुराना हमारा आयुर्वेद का रिसर्च है कि हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता। तो जहां पे ये साइंटिस्ट आ रहे हैं वो तो हम बहुत पहले पहुंच चुके थे। आपके पूर्वज बड़े समझदार थे, आपके बाप दादा बड़े समझदार थे। तो अगर आपको ज्ञान देखना है तो बाप दादा की तरफ में देखिए, और आपको मूर्खता देखनी है तो आजकल के पढ़े लिखे लोगों की तरफ में देखें। तो हृदय, हृदय, हमने क्या कहा? हृदय। हृदय का मतलब होता है खींचना, हृ का मतलब होता है खींचना, दय का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है? कब बोला? 10,000 साल पहले बोला हमने कि हार्ट क्या करता है? ब्लड को खींचता है, पंप नहीं करता, है ना। इतना ज्ञान हार्ट ब्लड को पंप करता है करके हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बना दिया ना हमने दुनिया में, क्योंकि ज्ञान ही गलत है। अब इसका मतलब क्या हुआ? दोबारा से आ रहा हूं, मैंने व्यान शक्ति के बारे में बात की, अब व्यान वायु के बारे में बात कर रहा हूं। आपके शरीर में ऑस्मोटिक प्रेशर को, टिश्यू के प्रेशर को व्यान वायु कहते हैं। जिसको आप ब्लड प्रेशर के रूप में नापते हैं, वो ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि अगर ब्लड का कोई प्रेशर है तो ये फिजिक्स के लॉ के अगेंस्ट में हो गया। बर्नौली का प्रिंसिपल है, आप गूगल जाके पढ़ लीजिए। लैमिनर फ्लो कैनॉट एक्सर्ट वर्टिकल प्रेशर। हमारा ब्लड लैमिनर फ्लो करता है, इसीलिए आर्टरीज पे प्रेशर नहीं एक्सर्ट करता, कर नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो आप ब्लड प्रेशर क्या नापते हो फिर? क्या आप ब्लड का प्रेशर नापते हो? नहीं साहब, आप टिश्यू का प्रेशर नापते हो, क्योंकि आप दबता क्या है? जब आप पट्टा दबाता है तो क्या ब्लड को दबाता है? वो आपके पूरे मसल को दबाता है, टिश्यू को दबाता है। तो प्रेशर किसका नपता है? पूरे मसल और टिश्यू को प्रेशर नप जाता है, जिसे आप ब्लड प्रेशर बोलते हो। तो अगर आपकी जो आर्टरीज है ना, उसके अंदर व्यान शक्ति या व्यान वायु जो है उसका फैक्टर बड़ा स्ट्रांग होता है, मगर वेन्स में व्यान वायु का फैक्टर वीक होता है। इसीलिए वहां पे क्या लगे होते हैं? वाल्व्स लगे होते हैं, वाल्व्स लगे होते हैं। ये वाल्व किस पे काम करते हैं? एक ही तरफ ब्लड को फ्लो करवाना चाहते हैं, मगर वाल्व का स्ट्रेंथ अगर कमजोर होगा तो ब्लड एक जगह इकट्ठा होने लग जाता है, जिसे आप वेरिकोस वेन कहते हैं। ठीक है, इतने तो ज्ञान ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये वाल्व का जो प्रेशर है ये वही व्यान वायु है। तो अगर आपको वेरिकोस वेन ठीक करना है तो क्या ठीक करना पड़ेगा? वो व्यान वायु को आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हमारे पास में बहुत केसेस है जो वेरिकोस वेन जिनके ठीक हो गए कुंभक करके। तो हम बॉडी का सिस्टेमिक प्रेशर जिसे कह रहे हैं ना, सिस्टेमिक प्रेशर को अगर ठीक से एड्रेस करें तो वही व्यान वायु को ठीक कर देगा, और व्यान वायु जैसे ठीक होंगी आपका वाल्व का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, बल्कि फ्लो भी। और दूसरे तरीके से समझाऊं, ठीक है, टेक्निकल है थोड़ा ज्यादा, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। आपका किचन का सिंक गंदगी फंस गई, कैसे साफ करेंगे? पाइप में गंदगी फंस जाती है, कैसे साफ करते हैं? थोड़ा प्रेशर डालते हो ना, थोड़ा प्रेशर डालते हो ना अंदर, तो आप कुंभक करके अंदर प्रेशर डालोगे तो कितना आसानी से ठीक हो जाएगा। दूसरे तरीके से समझा दिया। तो आप इलाज करेंगे नहीं और कहेंगे कि ये मेरा ठीक नहीं हो रहा, तो ठीक तो कभी होने नहीं वाला वो। तो आपको तो अपना इलाज करना पड़ेगा ना, ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा।
है ना, केवल ऐसे ही सोच सोच के कि ये हो गया, नाम रख दिया वेरिकोस वेन, बट ठीक तो करते नहीं, नाम रख दिया डायबिटीज, ठीक तो करते नहीं, नाम रख दिया ब्लड प्रेशर, ठीक तो करते नहीं, नाम रख दिया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक तो करते हैं। कौन सी बात ठीक करते हैं? कुछ भी ठीक नहीं करते, नाम रखा हुआ है केवल। नामकरण संस्कार तो आप भी कर लो, पप्पू चप्पू टप्पू कुछ भी रख दो, उससे ठीक थोड़ी होगा। ठीक करेंगे, सही काम करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, just a sec. Can we have the questions from the participants, please? Arjuna Govind Rajan, you can ask your question, please. Unmute yourself. Arjuna Govind Rajan. Anybody else who would like to ask their questions? Sir, can I ask? Yes, Arjuna, sir, you can ask your question. No, I'm Pragya नमस्कार। here. Sir, अच्छा, आप okay. नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए, एक एक करके पूछ लीजिए। हाँ, ओके सर, आई जस्ट वांटेड टू नो ये जो है व्हाटएवर इज अष्टांग व्हाटएवर इज अष्टांग चिकित्सा। कुंभक का, हाँ हाँ हाँ, ये जो कुंभक का आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन, but however I am already doing two types of kriya from Isha Yoga, that is Shambhavi Mahamudra and Surya Kriya. So my question is very simple. If I join in this course, should I stop that or can I continue that? No, you don't have to stop them. There is a sequence in which you can do that. And depending upon the availability of time, there are people who do multiple things. We tell them in what sequence they do it and what are the things they can drop for a certain period of time, and again can start the process later on. If you're doing Surya Kriya, like if you're doing Surya Kriya or Shambhavi Mahamudra needs to be done in the end, in the last part of whatever you are doing. So it can also be done in the evening, like if you want to schedule the process, you can also take it to the evening. Surya Kriya is something that is, we also have, there are certain Hatha Kumbhak processes which involve body movement and breath hold and with a certain number. So Surya Kriya is something that is more towards the spiritual aspect of the body. So Kumbhak, start with Kumbhak, then you can do Surya Kriya or do Surya Kriya and Shambhavi in the evening. Start with Kumbhak. You can also do Surya Kriya the moment you get up. If you choose a different kind of a sadhana process, then even Shambhavi can be done like getting up at 3:30 in the morning. So once you come, we'll see what are the imbalances in your system, and accordingly we'll suggest. Right? We don't we usually don't say to stop any practice except of Kapalbhati, where we say ki stop it for some time till you have control over your exhalation. Till that point you stop and then you can continue. Okay, thank you, sir. Okay, next person can please ask their question. Swamiji. हाँ, बोलिए, प्रज्ञा बोलिए. Pragya, yeah. Swamiji, first of all, thank you so much. Actually, my questions were related to frozen shoulders and varicose veins. Both you have addressed. So I'm very much interested in joining. But my 14-year-old daughter is there. So I want to know, she has vertigo. Whenever she stands and lot of giddiness she's having. I don't want to give her allopathic medicine, Vertin or something like that, because then she will become habitual. So can she be also treated? No, she'll not be able to join this program, but we have a different program. Vertigo? Yes. There is, vertigo can easily be cured. It cannot be cured through medicine. Yeah. It cannot be cured through medicine, but vertigo can easily be cured. But for kids who are less than 16 years, we have a different program. Right. Okay. So there is a completely different approach to how we treat, how we do therapies in kids, and there are two actually age groups from 8 to 12 and 12 above. So we are starting this Sunday 12 above
course, and you just share your number. We'll share the link with you. You can join the webinar on Saturday, Okay. and then you can take a decision of making your kid join that program. Vistara Gurukul, it is by the name of Vistara Gurukul. There Okay. is a different The approach information to it. will You be just shared share your number and write for my kid. So we'll share a link with you. You can join the webinar first, and then you can take a decision of joining the course for her. Okay, हेलो Swamiji. गुरुजी, आई हैव अ क्वेश्चन Mhm. सिमिलर। मेरा भी बेटा जो है वो भी 15 ईयर ओल्ड है। उसको 5 साल से दोनों पैरों में बहुत पेन होती है और जनवरी से कुछ डिफरेंट हुआ है कि राइट साइड में उसको थोड़ा सा नमनेस और दो वीकनेस आ गई है जो उसकी आंख और फेस तक भी जा रहा है। हाँ, उसका मूलाधार, द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन इज वीक। ठीक है ना, ये हम सबसे पहले एड्रेस करते हैं। द फर्स्ट प्रोग्राम इज विनायक, वी कॉल इट विनायक, विच इज बेसिकली मूलाधार, जिसमें हम सर्व सिद्ध कुंभक सिखाते हैं। वी एड्रेस दैट एस्पेक्ट ओनली। कि बच्चों में अनलेस एंड अनटिल द मूलाधार इज स्ट्रांग, दे विल गेट इनटू सम काइंड ऑफ एन इश्यू इन देयर लाइफ। तो उसको स्ट्रांग करना जरूरी है। द फर्स्ट थिंग दैट किड फेसेस, पाँव में बहुत दर्द है, कई बच्चों के पाँव में कंपन भी रहता है और पाँव टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं। एंड देन देयर आर न्यूरो इश्यूज ऑल्सो विच happens later on. So please share your number with that you want to address your kids problem. So we'll send a webinar link. पहले आप webinar में join कीजिए, see how we approach it, बच्चों में कैसे approach करते हैं इसको ठीक करने के लिए, and then you can take a decision. Okay, so this program is not for him basically. Not this program is not for. Okay. Yeah, good evening, doctor. I am Arjuna Govindarajan. Yeah, I am go Arjuna ahead. Govindarajan. Yeah, please And, ask me. Dr. Saab, I am 83 years old, number one. Mhm. Number two, my spinal cord L4, L5 seems to be there is some gap which has been analyzed by ortho. Mhm. And I am, then he has cleared that there is no problem as far as that spinal cord is concerned. Lately, for the last about 15 days, I am having nerve pain on my right leg, between hip and knee and thigh, and Okay. and below leg also, calf muscles. Okay, I So, understood. I firstly, understood. Mhm. my problem whether I should join, and if I join, whether I will get some relief. All those concerns I'll be addressing, because I could see those are the concerns and I'll address it. See, first of all, 83 or 84 is a very good number. So don't go before 84, right? And you have reached a very beautiful time of your life, very beautiful time. The best part would be if you can remain independent. You have much of a life left at this point of time also. Yeah. I can see that. So the best part would be if you can remain independent for the rest of your life and your body remains functional till the end, then it will be a very beautiful. What I see is, what is the weak factor in you? It is called as Udana factor. What is Udana factor? So I'll tell you a little bit so that everybody can actually have an idea about how we approach a problem. Udana is like, you have heard Newton saw an apple falling down and he said, okay, there is gravity. Although Newton hasn't said gravity, we have said it thousands of years back. But nobody asked Newton why the tree is growing up. If everything is supposed to fall down, why the tree is growing up? Why we grow up? Why we grow tall? So there must be some force. There must be some force through which you are pushing yourself away from gravity. Gravity से ऊपर जा रहे हैं ना, you are going away from gravity. So that force must be stronger than gravity. That force is called as Udana. That force is called as Udana. Now, once Udana factor comes down, what happens? What happens? Your spine actually starts drooping. The strength of the spine to keep itself upright becomes weak. At this point of time, the maximum load is taken by the lowest part of spine or lower part of spine. Okay. Right? That is called as lumbar region. And you have been given this number L4, L5. L means lumbar region.
Right. So Right. your body, your spine is taking the toll of weak Udana factor, and your lumbar is pressing some nerve. Because of that, you're facing some kind of a numbness issue in one of your legs. Right. It might later on spread to both the legs also. Now, Right. what is to be done? What is to be done? Like Yeah. I stated the problem initially by saying your Udana factor is weaker. Now, what is Udana factor? For the sake of understanding, in terms of your breath, I can make you understand Udana in many, many different ways. Right. But because we are using breath as a tool to recover, so what is Udana in terms of breath is maximum inhalation with 4 times hold is Udana. Right. So if you can inhale for 5 seconds and hold it for 20 seconds, this both combined together is Udana. If you practice it, you'll see your Udana factor will increase. That is what we will do. This is just one observation and one analysis, or you can call it diagnosis, that I have done just by looking at you. Yeah. If you just practice it, you'll see the Udana factor as it increases, you will be able to stay upright more, and thereby you will also, because the factor of inhalation is also responsible for the metabolic heat in your body, for all the functionality in your body. So you'll see, you'll feel like more energetic, more upright, will be able to do a lot of activities through this body, and will not remain dependent on anybody. Right. This will also increase the quality of your life. So at what age you can do Kumbhak? Even if somebody is on his or her deathbed, Yes. if they do a certain amount of Kumbhak, they can ensure their next life is better than this. So when Right. can you do Kumbhak? At any time. In fact, Right. you should be doing Kumbhak so that it improves not only the quality of this life, but the progression to another life. Right? Right, doctor. Yeah. Thank you. स्वामी जी मुझे पूछना हाँ। है क्वेश्चन स्वामी जी स्वामी मुझे कुछ पूछना हाँ, एक एक करके एक राजश्री बोलिए। हाँ, मैं राजेश्वरी बोलकर है, मैं बम्बई से बात कर रही हूँ। मैं 2019 में मैं कैंसर पेशेंट थी। मेरा यूट्रस निकाल गया और 27 लिम्फ नोड्स निकाल गए थे। थेरेपी निकाला है और मुझे ये बहुत लगन है, ये अपना जो आपने बताया ये योगा में ऐसे सीख रही हूँ और कर भी रही हूँ, लेकिन मुझे अभी ट्रेमर से दोनों हाथ में, पैर में, और दे आर सेइंग दैट इट्स बिकॉज ऑफ फर्स्ट कीमो का साइड इफेक्ट, बट डे बिफोर यस्टरडे I have gone to neurologist. He told me it's not the side effect of chemo, it's action tremor. मैं कुछ करने जाऊं, अभी मैं मोबाइल पकड़ा मैं समझ गया। नी प्रॉब्लम भी है, नी प्रॉब्लम ये अपना कार्टिलेज गया है, एंड आई डोंट वांट टू गो टू हॉस्पिटल, एंड माय हस्बैंड इज अ डॉक्टर, but he believes in Ayurveda and yoga. He's a doctor, but he is believing Ayurveda. So I want to. हाँ, आपकी बात मैं समझ गया। मैं आंसर दे देता हूँ आपको। पहली बात तो हम कैंसर का एक स्पेशल प्रोग्राम भी करते हैं, और मैंने आपको शुरुआत से बताया, जब भी आप शरीर में कोई जहर डालेंगे तो उसका नुकसान तो होगा ही। हाँ, आपको बोला जा सकता है नहीं इसका नुकसान नहीं होता, मगर नुकसान तो होगा ही। तो अगर आप मस्टर्ड गैस, जो कि हिटलर मारा करता था लोगों को गैस चेंबर में डाल के, वही कीमोथेरेपी कहते हैं, वही कीमोथेरेपी करवाएंगे तो क्या शरीर को नुकसान नहीं होगा? वो तो होगा ही। और कीमोथेरेपी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता कैंसर का। पहली बात बताता हूं, झाड़ू लगाने से गंदगी बनना बंद नहीं होता है ना। गंदगी बन गई, आपने झाड़ू लगा दिया, मगर गंदगी बनना का प्रोसेस अगर आप रोकेंगे नहीं
तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, रिलैप्स हमेशा कीमोथेरेपी की वजह से रिलैप्स बढ़ जाता है, रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में अगले 10 साल में के अंदर आप देखेंगे रिलैप्स के पेशेंट ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि आप जब भी बॉडी को टॉर्चर करेंगे तो बॉडी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इसका नुकसान होता है, उसका फंक्शनिंग आगे वीक हो जाता है और ये सस्टेन करने में अपने आप को थोड़ा उसकी मुश्किल होती है आगे चल के। इसलिए रिलैप्स होने के चांसेस कीमोथेरेपी या कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज आपको, क्योंकि अभी इतना सफिशिएंट रिसर्च नहीं हो रहा इन सब एरियाज में, होना चाहिए। अच्छा, अब क्या बोलूं, अब नेक्स्ट बात मैं बताता हूं। इसके साथ साथ मैं एक और एड्रेस करूंगा मैं चीज, जो कि किसी ने पूछा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकता है क्या? बिल्कुल ठीक हो सकता है, बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। ये सुबह आप सोचते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉन्टिन्यूस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जिस समय अच्छा फील करते हैं उस समय ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता ही नहीं आपके शरीर के अंदर, लेकिन आप वापस उस चक्कर में फंस जाते हैं, बिकॉज इसी को कर्म कहते हैं। वापस आप वो टेंडेंसी और पर्सनालिटी लेके पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से फिर से डैमेज होना शुरू हो जाता है, फिर से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, मैंने एक और चीज तरीके से बताया शुरुआत में कि और इम्यून रिस्पॉन्स खराब हो गया क्योंकि आपने केमिकल्स डाले, आपने कई सारी ऐसी चीजें डाली जिसकी वजह से शरीर को खतरा आ गया। अच्छा, एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल तरीके से, जितने लोग यहां पे है ना, ये उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान होगा अगर बोलो तो। ठीक है, अगर आप अपने बॉडी का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप अपने बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ा दें, अच्छा कर दें, ठीक कर दें, तो देर सवेर आपकी बॉडी रिकवर कर ही लेगी। अच्छा, इम्यून रिस्पॉन्स को समझने का तरीका क्या है? हाँ, और रिकवरी जिसे कहते हैं ना, अगर किसी चीज का साइड इफेक्ट आया तो साइड इफेक्ट को रिकवर करना है कि नहीं करना आपने? भाई कीमोथेरेपी तो ले लिया, कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट 100% होता ही होता है, कोई बोले चाहे नहीं बोले। ठीक है ना? ये यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर जिसने ऑलमोस्ट 40 साल मेडिसिन पर रिसर्च किया, उसने कहा हर एक मेडिसिन का नुकसान होता है। तो आप मैं आपको थोड़े से एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, आप जरा ये ऐसे ट्राई करके देखें, इससे आपकी इम्यूनिटी का भी पता चल जाएगा आपको। आप अपने दोनों पांवों को जोड़ के खड़े हो जाएं, कभी भी करें, अपने फ्री टाइम में करेंगे, और किसी को बोलें कि आपको धक्का देके गिराए। तो कुछ कंडीशन आपको, कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। कुछ लोगों पे अब अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समझ में आए, कुछ लोग तो बड़ी जल्दी गिर जाते हैं और कुछ लोग जो है जल्दी नहीं गिरते। अच्छा, जो जल्दी नहीं गिरते उनका इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स अभी भी स्ट्रांग है। फिजिकल बॉडी की बात बता रहा हूं, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रांग है। अच्छा, आप नहीं गिरने की, अड़े रहने की कोशिश कैसे करते हैं, जरा अंदर जाके देखिएगा। क्या करते हैं आप? सांस रोक के अड़े रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सांस रोक के वहीं पे जमे रहने की कोशिश करते हैं। तो अब इम्यूनिटी को मैं दो चीज से जोड़ रहा हूं, दो चीजों को इम्यूनिटी के साथ में कनेक्ट कर रहा हूं। जो आपकी फंडामेंटल इम्यूनिटी है वो आपकी सांस रोकने की क्षमता है। सांस रोकने की क्षमता, सीधी सी बात बता रहा हूं। तो अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो इम्यूनिटी खराब हुई ना, उसकी स्ट्रेंथ अगर बनानी है तो सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी होगी। ये पहली बात आप समझ लीजिए, और कोई तरीका ही नहीं है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने का। अगर आप सोचते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी डाल के हम कैंसर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आगे बढ़ सकते हैं, तो आप गारंटी लिख लीजिए आज, लिख लीजिए आज, ह्यूमन जीनोम खराब हो जाएगा, हो चुका है और बहुत तेजी से ये खराब होगा। ह्यूमन का जीनोम, जेनेटिक्स जो है वो खराब हो जाएगा। अगले आने वाले 25 साल में हमें ये चीजें बैन करनी पड़ेंगी, मगर तब तक हम बहुत लोगों का नुकसान कर चुके होंगे। जैसे कि आपने अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की दवाई, फैटी लिवर की दवाई, स्टैटिन खा खा के 25% डायबिटीज के केसेस ना उनको खाने की वजह से आ रहे हैं। तो आप दवाई खा के बीमारी कोई ठीक नहीं कर रहे, मगर आप बीमारियों में इजाफा कर रहे हैं। देखिए, आप किसी को धंधा करवाना चाहते हैं
तो अपने नुकसान करके ना करवाएं, वैसे ही पैसा दे दो। अमेरिका को आप पैसा देना चाहते हो ना, दवाई खा खा के उसको कट मिलता है, पर अपना नुकसान करके उसको पैसा देना चाहते हैं, इससे बड़ी बेवकूफी तो कुछ भी नहीं हो सकती। तो पहली बात कि इम्यूनिटी ठीक करने का कोई और तरीका है नहीं, आगे जाके इम्यून सिस्टम को छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, वो और खराब कर देगी। ये आप आज लिख लीजिए, आज से 10-15 साल बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक पता नहीं कितने लोगों का सिस्टम बिगड़ चुका होगा और कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि आज भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। आपके घर वाले क्या आपकी बीमारी की जिम्मेदारी ले सकते हैं? आपका डॉक्टर क्या ले सकता है? वो तो वही दवाई देगा जो उसको प्रोटोकॉल में है, उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। उससे आप बीमार हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके शरीर के ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि आपका शरीर ही ठीक नहीं है। लाखों सालों से इस शरीर को कोई बीमारी नहीं हुई, ये बीमारियां तो पिछले 50-100 सालों में ही चल रही हैं, ये कौन देखेगा? तो अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जहां पता चल रहा है कि जहां जैसे ही डॉक्टर हड़ताल पे जाते हैं, लोग स्वस्थ हो जाते हैं। मालूम है आपको? जिन लड़ाई में, अगर वॉर जोन में जहां मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वहां सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। बहुत सारी चीजें अगले 10 से 15 साल में निकल के आने वाली। तो हमने और क्या चीज देखी है? अगर ये काम कर दें आप, तो क्या होगा? हमने क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि कैंसर का पेशेंट जिसको कीमोथेरेपी लगता था और वो 2 हफ्ते तक बेड से नहीं उठ पाते थे, जब उन्होंने कुंभक शुरू किया तो 24 घंटे में बेड से उठ के अपना काम खुद करने लग गए। यानी कि अगर आपको अपने शरीर को वापस, वो जो वीक स्ट्रेंथ हो गया उसकी वजह से, बॉम्बार्डमेंट की वजह से, उसको वापस रिकवर करना है, तो उसके स्ट्रेंथ फैक्टर्स को आपको थोड़ा काम कर लेना चाहिए। देखिए कितना आगे चल के मैंने बताया, आप दवाई से नहीं बच सकते, क्योंकि दवाई से ही किसी का बिजनेस चलता है। वो किसी हालत में रुकने नहीं देंगे। कम से कम अगले 15 से 20 साल से 25 साल हम मान के चलिए, ये कहीं नहीं रुकने वाला। हम इसको कितना भी अच्छा रिजल्ट सामने लाके दिखा दें, मगर दवाइयों का ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये रुकने नहीं वाला है। और इसलिए बचना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, तो अपने आप को ठीक कर लीजिए, अपना टॉलरेंस बढ़ा लीजिए। भाई डंडा मार रहा है कोई, तो अपनी पीठ मजबूत कर लो, क्योंकि वो डंडा मारना नहीं छोड़ेगा। तो ये जरूर करना चाहिए। स्वामी जी मैं पूछूं? स्वामी जी, दूसरा है, मैं एक सिंगर है, लेकिन मेरी आवाज गए 10 साल से, तो वो आप वापस आ सकती है क्या? हाँ, आ सकती है। ऐसे हमारे पास में सिंगर आए जो नहीं गा पाते थे, फिर गाने लग गए। तो अगर आप कुंभक करेंगे ना, तो आपको मैं बताता हूं कि 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर आप वापस से अपना प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। थैंक यू। ठीक है, बाकी तो छोड़िए, ये सबसे जरूरी चीज है आपकी लाइफ की, जिसको शुरू करना है आपको, है ना? मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो प्रोग्राम है, मुझे बॉडी एक्स एंड पेन्स तो रहता ही है, बट आई हैव सडनली माय शुगर इज आल्सो एलिवेटेड अ लॉट, 100% A1C बढ़ गया है। तो इज दिस प्रोग्राम राइट फॉर मी? हाँ, दिस प्रोग्राम इज राइट फॉर यू इफ इट स्टार्टेड विथ योर बॉडी पेन एंड मेटाबॉलिज्म। देखो, मेटाबॉलिक वीकनेस की वजह से बॉडी अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करती है। रिकवरी प्रोसेस में बहुत सारी चीजें करती है। उसमें एक चीज है ग्लूकोनियोजेनेसिस या शुगर लेवल का बढ़ाना, जिसको हम गलत मान के उसको कम करने लग जाते हैं, तो रिकवर ही नहीं करने देते अपने शरीर को। एक प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसका भी शुगर लेवल हाई होता है, उसको भी दवाई देके शुगर लेवल कम करते हैं, जबकि वो एक बेबी को प्रोड्यूस कर रही है, उसके लिए उसको ग्लूकोज चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म को अगर हम अच्छा कर दें और टॉलरेंस को अच्छा कर दें बॉडी की, तो हमने देखा है कि लोगों के ग्लूकोज कुछ भी हो, मगर उनकी बॉडी में उसका कोई सिम्टम नहीं होता, और कोई भी बीमारी होती है उसको वो रिकवर फास्ट हो जाता है, विच इज लाइक एन इम्पॉसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एलोपैथी। एलोपैथी इसको समझता ही नहीं है। अगर आपका 300 ग्लूकोज है और आपको न्यूरोपैथी है, तो वो ठीक ही नहीं होगा, रेटिनोपैथी तो ठीक ही नहीं होगा। बट मैं आपको दिखा सकता हूं 300 ही क्यों, उससे ज्यादा भी ग्लूकोज में आपका फटाफट इन्फेक्शन भी हो तो ठीक हो जाएगा, न्यूरोपैथी ठीक हो जाएगी, ग्लूकोमा ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही आप टॉलरेंस बढ़ाएंगे ना, तो ये आइडिया ऑफ ग्लूकोज कितना होना चाहिए आपके ब्लड में, ये अभी बहुत डाइसी आइडिया है, क्वेश्चनेबल आइडिया है। ये दवाई बेचने का बड़ा अच्छा तरीका है, बस और कुछ भी नहीं है।
जब मैं आपको दिखा सकता हूं कि हाईयर ग्लूकोज लेवल पे आपके प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो फिर ये ग्लूकोज लेवल प्रॉब्लम कहाँ रही? तो ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपकी शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। अच्छा, आई हैव टू मूव टू अनदर प्रोग्राम। एक दूसरा प्रोग्राम है आज हमारा, उसमें मूव करना पड़ेगा। आप अपने क्वेश्चन डाल दीजिए ना, ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, आपको आंसर मिलेगा। निद्रा नर्स के लिए कुछ है? क्वेश्चन है एक्चुअली, वो बहुत सफर कर रही है। प्लीज 1 मिनट खाली स्वामी जी, प्लीज। देखिए, सफर कर रहे हैं तो करना क्या होगा? ऐसे तो मेरा आंसर करने तो उनकी सफरिंग जाएगी नहीं ना। शायद कुछ सोल्यूशन मिल जाए सर। सोल्यूशन मैंने बता दूं। इनको प्रॉब्लम क्या है बताइए? वो प्रॉब्लम मैं बता चुका हूँ, बताइए। एक्चुअली क्या ना, इनको कमर से लेकर के पूरा लेफ्ट कमर से लेकर के नीचे पूरा पैर तक पेन रहता है। एंड ऐसा पेन रहता है कि ये खड़ी नहीं हो सकती है, चल नहीं सकती है। ऐसा लगता है उनके बॉडी में पूरा करंट लगता है उनको एवरी टाइम। हाँ, देखो, दो चीजें, सियाटिका और नर्व, ये दो चीजें। सियाटिका पेन दिखाए तो कोई ने बोला नर्व की प्रॉब्लम है, कोई बोलते साइटिका की प्रॉब्लम है, कोई बोलता है एक्यूपंक्चर कराओ ठीक हो जाएगा, दवाइयां देते, पर इनको कुछ नहीं असर पड़ रही है। मगर जब तक आप पूरा सियाटिका जो है ना, ये पीछे जो है सर्वाइकल रीजन से निकल के आपके एडी तक जाता है, जब तक आप इसको अलाइन और इसमें स्ट्रेंथ नहीं जनरेट करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। पहली बात तो आपको बता दूं, तो ये प्रोग्राम में हम करवाते हैं, उसी से होगा। दूसरा, नर्व अगर प्रॉब्लम बता भी रहे हैं, एक्यूपंक्चर से हो सकता है थोड़ा फायदा हो जाए, मगर क्या है कि अनलेस एंड अनटिल नर्व रीजनरेशन नहीं करवाएंगे तब तक फायदा नहीं होगा। तो नर्व रीजनरेशन करवाने के लिए उनका मेटाबॉलिज्म ठीक करना होगा, और वो हम प्रोग्राम में करवाते ही हैं। स्वामी जी, निद्रा नर्स के लिए कुछ हो सकता है अपना प्रोग्राम में? हाँ, किस चीज के लिए? मुझे नींद नहीं आती ना, नींद नहीं आती। हाँ, तो बॉडी का रिदम खराब हो गया ना। घंटा भी नींद नहीं आती। हाँ, दो तीन चीजें इसमें समझ जाइए। बॉडी का रिदम खराब हो गया। आप बॉडी का अगर रिस्क होएगा ना, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब तक आप शरीर को छोड़ नहीं पाएंगे ना, नींद नहीं आएगी। और आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको बता रहा हूँ सोल्यूशन बता रहा हूँ। जब आप बस में ट्रैवल करते हैं, अगर उबड़ खाबड़ जगह से जाती है, तो आपने अगर कोई पोल पकड़ रखा है, खंबा पकड़ के रखा है, तो आप टाइट पकड़ लेते हो ना। बराबर, टाइट पकड़ लेते हो ना। तो बॉडी में भी जब रिस्क आती है तो बॉडी को टाइट पकड़ लेते हो। तो टाइट पकड़ोगे तो नींद कैसे आएगी? जब तक छोड़ोगे नहीं, नींद नहीं आएगी। अच्छा, छोड़ने के लिए क्या करना होगा? वो रिस्क कम करना होगा, बॉडी के अंदर का रिस्क कम करना होगा। तो अपना तीन चीजें देखिए, ज्वाइन करके मेरा हो सकता है। ओके, हाँ, अरे मैं कितने एग्जाम्पल बता दूं आपको। कितने की नींद की दवाई छूट गई, कितने की डिप्रेशन की दवाई छूट गई, मेंटल इश्यूज की दवाई छूट गई। तो ये तो बहुत कॉमन चीज है। लोगों के ऐसे एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमें 15-20 साल से नींद नहीं आई, और कुंभक करने के बाद पहली बार ऐसा लगा जैसे घोड़े बेच के सोए हैं। हाँ स्वामी जी, मुझे कम से कम 15-20 साल से ये 15-20 साल से नींद का। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको नींद नहीं आती, उसको ठीक नहीं कर सकते। हाँ, और आजकल तो 1 घंटा भी नहीं आती रात को नींद। हाँ, वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है ना, कम थोड़ी होती, क्योंकि ट्रीटमेंट तो आप कर ही नहीं रहे। दवाई लेके भी ट्रीटमेंट तो कर नहीं रहे ना। ठीक है, तो थोड़ा काम करें शरीर पे, बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपका वेबिनार ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपका जीवन बहुत सुखद और हेल्दी हो, ऐसी शुभकामना है। हेलो, thank you so much to all the participants. I guess some of the participants have some questions, so please write in the webinar group and we will get it answered. As Swamiji had to join another webinar, so we had to come to an end of the session. So thank you so much. Good night. Stay well. Ma'am, I have a question. क्या हम इसको अभी एक छोटा सा इंट्रो ले सकते हैं इसका, कि हमारे को सूट कर रहा है? आई थिंक मतलब, या ऐसा कुछ इसका जो थेरेपी का ऐसा है ना कि ये सूट नहीं करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, इन द सेंस दैट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर ब्रेथ, राइट, तो वो आपको स्ट्रेंथ ही बिल्ड करके देगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप बाहर से कुछ भी नहीं
ओके मतलब I want to say that a trial session type वो नहीं है ऐसा कुछ इसमें आपके प्रोग्राम में? आप वेबिनार ग्रुप में लिख दीजिए, so we'll see, we'll update you if anything of the sort is there. मैम इतना लंबा समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट, ये इतनी न्यू चीज थी हमारे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा ये अच्छा हमको हुआ है। तो लेट्स प्रोसीड। आगे आप इंफॉर्मेशन डालेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको ज्वाइन कर। और ये एक पूछ रही हूँ कि अभी इस टाइम पर अगर नहीं ज्वाइन कर पाए, आगे होता रहता है ये कोर्स? कोई बात नहीं, आप कर सकते हो एक काम, क्योंकि हमारे सीट्स तो लिमिटेड रहते हैं, तो आप बुक कर सकते हो और हमारी जो एनरोलमेंट एक्सपर्ट है उसको लिख दो कब से ज्वाइन करना है, तो वो उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते हैं। डन डन। फाइनल कॉस्ट क्या रहेगा मैम? थैंक यू सो मच। फाइनल कॉस्ट प्रोग्राम का क्या है? 6,500। और टोटल कॉस्ट है मैडम? टोटल कॉस्ट? हाँ वो टोटल कॉस्ट है, उससे एक पैसा ज्यादा नहीं लगेगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 months कोर्स ना? No, it is approximately 10 weeks. So yeah. So मतलब 2 months plus हो गया, 4 weeks हो गया ना? Okay. मैं अभी जा रही हूँ और 13 to 27 जून मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, तो बीच में गैप हो सकती है या अगेन आई कैन वो अगेन ज्वाइन कर सकती? वीडियो देंगे ना हम लोग, वीडियो देंगे ना, आप वो देख के कर सकते हो। हाँ तो गैप वैसे न जाए, वहाँ जो वाईफाई होगा नहीं तो डेटा होगा, तो मैं वहाँ से भी ज्वाइन कर सकती हूँ। वीडियो तो कभी भी देख सकते हैं। राइट राइट, थैंक यू। टाइम लिमिट नहीं है ना? वीडियो की टाइम लिमिट नहीं है ना मैडम? To the program. Good night. Hello, ma'am. Good. Yes. It is 2 classes in a week. Yes. 2 classes in a week for and there would be 10. How many classes? 18 sessions. 18 sessions. 18 sessions. Right. Okay, ma'am. Yeah. All the information is on this group, na? ठीक. Yes, everything you can write down. Ask your queries, we'll answer you. Thank you so much. Thank you. Good night. Thank you so much. And signing off, Rachna Bothra. Thank you.